Hello friends, hello students. Today we are going to discuss chapter number 6 of biology science, that is life processes. Now first of all, understand the meaning of life processes. See, life processes are the process because of which there is life on this planet. Remember, without life processes, any living organism cannot survive. Okay, without life processes, all the living organism, if you consider, then they cannot be alive without life process. Remember that. Now, how can we decide that something is alive or not? So, criteria to decide whether something is alive, वो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि कोई सी चीज जिंदा है और कौन सी चीज जिंदा नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट. Living beings always move from one place to another without the help of any extra terrestrial thing or external help. बाहरी चीजों की मदद के बिना अगर कोई चीज हिलती है, then that is a living beings. Okay, obviously movement is not the only criteria, but movement is one of the criteria. Some movements are easily visible like the movement of the body part. अब देखो, कुछ movement easily visible हो सकते हैं, for example the movement of body part, and some movements are not easily visible like the molecular movements. Obviously molecules are very smaller, they are very tiny, we cannot see the movement of molecules, so they are not visible. The molecular movement in cells and tissues is necessary for all life processes, and for all the life processes, molecular movement in cell as well as in tissues are very much necessary. Okay, remember that, because without that we cannot survive. So which are these life processes that we are talking about? The first of all, life processes are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इसमें न्यूट्रिशन मतलब क्या? द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body for life processes. Okay, nutrition means taking food by an organism. खाना उसके बॉडी के अंदर जाएगा, and its utilization by the body for life process, मतलब दूसरी प्रोसेस को चलाने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Next is respiration. The respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. In short, respiration means food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen. See, without the help of oxygen, respiration is not possible, and without respiration, energy cannot be released. So that's why oxygen is very essential for the body, and that's why human body or the organism body cannot survive without oxygen. Remember. Afterwards, there is transportation. The transportation is the process by which food, oxygen, water, waste product are carried from one part of the body to the other. हमारे शरीर के अंदर भी there are varieties of materials which are moved from one place to another place. And which are these materials? So these materials are food, oxygen, water, and waste product. And finally, there is excretion. Excretion means the removal of the waste material from our body. It is the process by which waste product are removed from the body. Remember that. Excretion is the process by which waste product are removed from our body. Okay. अब नीचे देखो डायग्राम दिए गए डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. फिर रेस्पिरेटरी अपरेटस है जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आएगा. Okay, this particular diagram is of transportation system and this particular diagram is of excretory system. One by one हम सारे के सारे सिस्टम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. बट सबसे पहले we will discuss nutrition. So nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body. Nutrition क्यों होता है, कैसे होता है? तो first of all, food is taken by an organism and it is utilized by that organism to build the body, for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. Okay, चार चीजें: build the body, growth के लिए, repair the damaged part and for energy.
and life on earth depends on the carbon based molecules and most of the food are also carbon based molecules. और अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है it is dependent on carbon based molecules and most of the food materials are also carbon based. For example, consider carbohydrates, they are carbon based. Fats, they are carbon based. Okay, the outside raw material used by living organisms are food, water and air. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल को यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं फूड को, वाटर को और एयर को. ऑब्वियसली फूड of different organism is different. हाँ, water and air is similar. water और air का composition similar है, ठीक है, but food is different. Different organisms have different varieties of food. Now modes of nutrition, कौन कौन से तरीके से अलग अलग organisms nutrition लेते हैं? So there are two main modes of nutrition. First is autotrophic nutrition, next is heterotropic nutrition. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो मींस सेल्फ, रिमेंबर, ओके, मींस सेल्फ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. तो प्लांट्स एंड बैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, रिमेंबर. नेक्स्ट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. The heterotropic nutrition is the nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plant. ठीक है, heterotropic nutrition के अंदर वो डायरेक्टली अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बना सकते. They are dependent on plant either directly. For example, consider a deer. वो डायरेक्ट प्लांट खाता है, ये तो it is directly dependent on plant. And indirectly consider lion eats deer, but deer in short eats plant. So indirectly lion is also dependent on plant, because if there will be no plant there will be no deer, and no deer there will be no lion. Okay, so all animals, that is fungi and some bacteria, they are the example of heterotropic mode of nutrition. ठीक है. Now heterotropic mode में भी अलग अलग types होते हैं. Okay, types of heterotropic nutrition. So there are three main types of heterotropic nutrition. They are saprophytic, parasitic and holozoic mode. ठीक है, remember, saprophytic होता है, parasitic as well as holozoic. अब देखते हैं कि फिर saprophytic mode of nutrition मतलब क्या? तो it is the nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. Saprophytic nutrition में organism को उनका food कैसे मिलता है? Through dead एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जानवर या सड़ते हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से ये अपना खाना लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर फोटोग्राफ दिया है ऑफ मशरूम. ओके, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. और सैप्रोफाइट्स का मेन फॉर्म क्या होता है कि वो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन दे एब्जॉर्ब इट. दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी और उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं. एग्जांपल है मशरूम, bread mold, yeast and some bacteria. ठीक है. Next is parasitic nutrition. The parasitic nutrition is the nutrition in which organisms get their food from living organism, that is the living host. इनके जैसे मरे हुए होस्ट नहीं होते, डेड और डीकेइंग नहीं होता, जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर से ये अपना खाना लेते हैं विदाउट किलिंग देम. फॉर एग्जांपल कसकटा प्लांट है, देखो यहाँ पर ये जो बेल दिख रहे हैं ना आपको येलोइश कलर, दिस वन दैट इज कसकटा. और ये जो ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं बड़े वाले वो होस्ट प्लांट है. ये होस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना तैयार करता है, बट ये कसकटा प्लांट उनके खाने को छीन लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. फिर ऑर्किड्स है, टिक्स है, लाइस है, लीचीज है, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा. दीज आर डिफरेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स. एक सिंपल एग्जांपल में दे दूं, मॉस्क्विटो इज पैरासिटिक. आपको काटता है, आपको जिंदा रखता है, बट फिर भी आप में से वो न्यूट्रिशन कैसे भी करके ले ही लेता है. ठीक है. एंड थर्ड फॉर्म इज होलोजोइक न्यूट्रिशन.
It is the nutrition in which organisms takes food directly and then digest and absorbs it. For example, human beings, हम डायरेक्टली खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ले जाकर उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं. सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करके उनको एब्जॉर्ब करते हैं, बट होलोजोइक मोड में बॉडी के अंदर ले जाकर उनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है. कि फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, बर्ड्स है, फिशेस है, ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा. The maximum number of organism they forms holozoic nutrition. Okay, as far as heterotrophic nutrition is considered. ठीक है. First of all, we are going to discuss nutrition in plant. उसमें plant performs photosynthesis. Now, what is photosynthesis? So, it is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल होता है. सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एंड फाइनली व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? द प्रोडक्ट फॉर्म इज ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है. दिस इज द नेचुरल रिएक्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं. इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. Carbon dioxide and water is utilized in the presence of sunlight and chlorophyll, and final product is glucose. The C6H12O6 is glucose, that is the food, and water and oxygen, they are byproduct, जिनको रिलीज कर दिया जाता है कि via stomata. ठीक है. The food prepared is carbohydrate, this glucose, which is stored in the form of starch. Okay, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस में कौन सी बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है? ऑक्सीजन. नाउ सी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स. ओके, 3 मेन स्टेप है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. सबसे पहले एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो होता है वो सन की लाइट को एब्सॉर्ब करता है. Then conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecules into hydrogen and oxygen. फिर जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं. ठीक है. एंड फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. सो दिस 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. Remember, as you can see, diagram is given of photosynthesis. Here there is a plant, sunlight, carbon dioxide is absorbed, oxygen is released by the plant, but in the process glucose is formed. And water कहाँ से आएगा? Then water is absorbed by the roots. Remember, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में से मिलेगा, वाटर मिलेगा सॉइल में से, रूट्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा. और प्लांट के अंदर, खास करके लीव्स के अंदर, ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, ग्लूकोज फॉर्म होगा व्हिच विल बी स्टोर्ड इनसाइड द लीव्स एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड. ठीक है. अब सबसे पहले विल डिस्कस क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. क्लोरोफिल जो होते हैं दे आर ग्रीन पिगमेंट which are present inside the leaves. Remember, if we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot like structure called chloroplast which contain chlorophyll. अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो we will see green dot like structure जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. For example, consider this figure. इसमें जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है दे आर क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड दैट क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, रिमेंबर दैट. अब ये देखो, लीव को क्रॉस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, ज्यादा मैग्नीफाई करें उसको, यू कैन सी द स्टोमेटा ओवर हियर. एक गैप है वहां पर, गार्ड सेल्स है, ओके, विद क्लोरोप्लास्ट. और गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? स्टोमेटा को ओपन क्लोज करना. ना व्हाट इज स्टोमेटा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. स्टोमेटा. So these are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. Stomata are very tiny pores which are present in the leaves, as you can see here. Tiny pores are there. काफी मैग्नीफाई किया गया तब जाके ऐसे टूटी हुई पिक्चर दिखी है यहाँ पर. ठीक है.
वहां पर से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा या स्टोमा जो होता है, इट हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। एज यू कैन सी, ये जो ग्रीन कलर के पार्ट है, दे आर गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। और ये जो स्टोमेटा है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? तो गार्ड सेल्स। Without the help of guard cells, opening and closing of stomata is not possible. When water enters the guard cell, it swells and the pore opens. जब पानी guard cell के अंदर जाता है, it swells and pore open. देखो यहाँ पर खुला हुआ pore है, as you can see. And when the guard cell lose water, जब ये guard cell में से पानी बाहर आ जाता है, as you can see, H2O is leaving. Okay, it shrinks and the pore closes. तो ये shrink हो जाता है और आप देख सकते हैं pore जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है। इन शॉर्ट, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स डिसाइड्स वेदर स्टोमेटल पोर विल बी ओपन और क्लोज्ड। जब पानी स्टोमेटा के अंदर जाता है, ओके, व्हेन वाटर गोज इनसाइड द स्टोमेटा, सॉरी गार्ड सेल्स, इट स्वेल्स एंड द स्टोमेटल पोर ओपन। बट व्हेन वाटर लीव्स द गार्ड सेल, इट श्रिंक्स एंड द स्टोमेटल पोर क्लोज डाउन। ठीक है। See, diagram is given over here. As you can see, stomatal pores. This is the original picture through microscope. Okay, यहाँ पर थोड़ी बड़ी सी पिक्चर दी है। Okay, water diffuses into the guard cells, which causes them to open. जब पानी अंदर जाता है, देखो, stomata open हुआ। On hot and dry days, the guard cells have less water. They relax and the stomata close. ठीक है, hot and dry day में पानी रिलीज हो जाता है, stomata बंद हो जाता है। Sorry, activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now see, understand one thing. Without chlorophyll, photosynthesis is not possible. Okay, there is no chance that photosynthesis is possible without chlorophyll. अब इसके लिए एक एक्टिविटी है। Take a potted plant having variegated leaves, that is croton plant. Variegated leaves मतलब कि आपने काफी सारे leaves देखे जिसमें पूरा plant green नहीं होता है या पूरा leaves green नहीं होता है, पत्ता थोड़ा येलोइश कलर का, रेडिश कलर का होता है। अगर ऐसे पत्ते वाला जो प्लांट होता है उसको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोटन प्लांट है। कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। अब उस पत्ते को या प्लांट को 3 दिनों तक अंधेरे रूम में रखो ताकि सारा का सारा स्टार्च यूटिलाइज हो जाए। देन कीप इट इन द सनलाइट फॉर 6 hours। फिर अंधेरे रूम में से बाहर निकालकर सनलाइट में 6 घंटे तक रखो। एंड देन टेक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट and mark the green areas of the leaf on a sheet of paper. ठीक है, लीफ जो है वो ले लो प्लांट में से and mark the green areas on the leaf on the sheet of paper, कि पता चले कि भाई कहाँ कहाँ ग्रीन एरिया था और कहाँ पर नॉन ग्रीन एरिया था। Then dip the leaf in the boiling water to make it soft. Boiling water के अंदर पत्ते को डाल दो। Then dip the leaf in alcohol and heat it in a water bath to decolorize it and remove the chlorophyll. फिर उसी पत्ते को अल्कोहल में डालो और हीट करो। ठीक है, वाटर बाथ मतलब कि उबले हुए पानी के अंदर डालो, फिर नीचे आग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली उबले हुए पानी के अंदर डालकर अल्कोहल के अंदर डाल दो उस पत्ते को ताकि डीकलराइज हो जाए, मतलब कि सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डिप इट इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। फिर पानी में उसको धोकर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डुबाओगे ना, इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। तो क्या दिखेगा कि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, खाली वही ब्लू ब्लैक हुआ है, पूरा का पूरा लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। एंड दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसके ऊपर से क्या पता चला हमें? दैट क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि जो जो हिस्से में क्लोरोफिल नहीं था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, मतलब वहां पर स्टार्च नहीं आया, मतलब कि वो हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है। Now there is second activity to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, without carbon dioxide also photosynthesis is not possible. For example, take 2 potted plant of the same size and keep them in a dark room for 3 days so that all the starch is used up. 2 potted plant लो, अंधेरे कमरे में 3 दिनों तक रखो ताकि इसका भी starch use up हो जाए। Then keep the plant on separated glass plate. क्या अलग अलग ग्लास प्लेट के ऊपर रखो। And keep a watch glass containing some potassium hydroxide near one plate to absorb carbon dioxide. ठीक है, फिर एक वॉच ग्लास रखो which contains potassium hydroxide, मतलब कि पौधे के बाजू में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दो near one plant so that carbon dioxide can be absorbed. Cover both the plant with bell jar. Bell jar मतलब ऐसे ग्लास के जार
यहाँ पर जो पौधा है हमारा वो, और यहाँ पर प्लेट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH है। ये KOH क्या करता है, यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो दूसरा वाला पौधा है उसमें खाली बेल जार, यहाँ पर कोई KOH नहीं है ऐसे, ठीक। एंड सील द बॉटम ऑफ द जार विथ वैसलीन टू मेक इट एयर टाइट, और नीचे है ना वैसलीन से सील करो ताकि ये एयर टाइट हो जाए, ठीक है। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 आवर्स, फिर दोनों प्लांट को सनलाइट में रखो 3 घंटे तक। देखो लाइट मिल रही है दोनों प्लांट को बिकॉज ऑफ द ग्लास। देन टेक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, दोनों में से एक एक पत्ता तोड़ो, स्टार्च के लिए टेस्टिंग करो। द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसके पत्ते में स्टार्च नहीं मिलेगा। उसका रीजन कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड। अब लाइट मिलेगी तो भी फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। दैट्स व्हाई दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हालांकि इस प्लांट में हमें मिलेगा, बट ये वाले प्लांट में जहां पर KOH था बाजू में, वहां पर हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिला था इसलिए, ठीक है। ये पूछा है कि फाइंड द